اردو ورلڈ وائز میں خوش آمدید۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز پر وقت مل سکیں۔ رضا دریا میں کاغذ پھینکتے ہوئے چلا چلا کر کہہ رہا تھا، زندگی اتنی تلخ بھی ہو سکتی ہے، میں نے کبھی سوچا نہ تھا۔ وہ اس قدر چیخ رہا تھا کہ اس کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ ایک سنسان جگہ پر دریا کے کنارے کھڑا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، اور آج اسے کوئی خاموش کروانے والا نہیں تھا۔ یہ کہانی سچی ہے، البتہ کہانی میں بتائے گئے نام فرضی ہیں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ شازیہ کے ابا نے گھر کا دروازہ کھولتے ہی اس کی ماں کو پرجوش لہجے میں پکارتے ہوئے کہا، کدھر چلی گئی؟ جلدی سے آؤ نسیمہ، میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں۔ یہ سنتے ہی شازیہ کی ماں کمرے میں سے باہر دوڑی چلی آئی اور اپنے خامد کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ شازیہ کے ابا اس کی ماں کو دیکھتے ہی کہنے لگے، آج جو خوشی میں تیرے لیے لایا ہوں وہ بہت بڑی ہے، اور یہ ایسی خوشی ہے جس کا خواب تو نے شروع سے ہی دیکھا تھا۔ شازیہ کی ماں نے ابھی اس کے ابا کی کوئی بات سنی تو نہیں تھی، مگر اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جانے کیوں آنے لگے۔ اتنے میں شازیہ کے ابا نے کہا، ہماری بڑی بیٹی کا رشتہ آیا ہے، اور تو جانتی ہے رشتہ کس نے بھیجا ہے؟ شازیہ کی ماں یہ سنتے ہی خوشی سے جھوم اٹھی اور پوچھنے لگی، کس نے بھیجا ہے رشتہ؟ جلدی بتاؤ، کہیں خوشی سے میں مر ہی نہ جاؤں۔ اس کے ابا کہنے لگے، ہاں ہاں بتاتا ہوں، پہلے تو شازیہ کو بول کہ وہ میرے لیے پانی لے کر آئے۔ شازیہ کی ماں شازیہ کو جلدی سے پکارتے ہوئے کہنے لگی، اپنے باپ کو پانی لا کر دو۔ اس کا ابا اس قدر اونچی آواز میں بول رہا تھا کہ پورے گھر میں ابا کی آواز گونج رہی تھی۔ شازیہ بھی بڑی بے چینی سے پانی کا گلاس لے گئی۔ اتنے میں اس کے ابا نے کہا، ہمارے گاؤں کا جو چودھری ہے نا، ان کے گھر سے رشتہ آیا ہے۔ یہ سنتے ہی شازیہ کی ماں ایک دم کے لیے خاموش ہو گئی اور پھر کہنے لگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اول تو میں یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ چودھری کے گھر سے رشتہ آیا ہے، کیونکہ چودھری کے علاوہ تو اس گھر میں صرف اس کا چھوٹا بیٹا ہے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے چودھری کے آگے پیچھے کوئی نہیں، اور وہ بھلا ہم غریبوں سے رشتہ کیوں جوڑے گا؟ شازیہ کے ابا نے اس کی ماں کو بتایا، تو جانتی ہے چودھری صاحب کی 1 سال قبل بیوی اچانک سے انتقال کر گئی۔ اب ان کا بیٹا چھوٹا ہے اور ان کو بیوی کی ضرورت ہے۔ ارے پگلی، ان کو رشتوں کی کمی ہے کیا؟ گاؤں میں ایک سے ایک بڑھ کر رشتہ ان کو مل جائے گا، بلکہ آس پڑوس کے گاؤں بھی ان کے انڈر ہی ہیں۔ وہ جہاں چاہیں جس لڑکی پر ہاتھ رکھیں، لوگ بھاگ کر اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیں گے۔ وہ تو شکر مناتے ہوئے بنا کسی قسم کی دیر کیے شادی کر لیں گے، اور تو ہے کہ سوال پوچھ رہی ہے؟ شازیہ کی ماں شازیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، لیکن چودھری صاحب کی تو عمر… اس کا ابا ماں کی بات بیچ میں ہی ٹوکتے ہوئے کہنے لگا، ارے تو ہی تو شروع سے خواب دیکھتی تھی اپنی بیٹی کو چودھرانی بنانے کے، اور آج اگر وہ خواب پورا ہونے والا ہے تو اس قدر پریشان کیوں ہو رہی ہے؟ کوئی بات نہیں، عمر میں مرد کو ویسے بھی بڑا ہونا چاہیے۔ کیا بات ہوئی اگر وہ اس سے کچھ 15-20 سال بڑا ہوگا؟ تو شکر نہیں کرتی؟ اتنے بڑے گھر سے رشتہ آیا ہے، اور یہ بھی تو سوچ ہمارے باقی بچوں کی بھی زندگی بن جائے گی۔ اور اب تو بھی جانتی ہے اس غربت اور مہنگائی نے میری کمر توڑ دی ہے۔ اگر اس گھر سے رشتہ کر لیں گے تو ہماری بیٹی بھی راج کرے گی اور ہمارے دن بھی بدل جائیں گے۔ یوں انہوں نے شازیہ کی رضامندی پوچھے بغیر شازیہ کا رشتہ وہاں کر دیا، اور 1 ہفتے بعد اس کا چودھری سے نکاح ہو گیا۔ شازیہ کے ابا کام کی وجہ سے چونکہ گاؤں چھوڑ کر شہر آ چکے تھے، وہاں پر ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان پر رہتے تھے، اس لیے چودھری نے خاموشی سے وہاں پر آ کر نکاح کیا۔ لیکن اسی روز اچانک سے شازیہ کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے باپ کا انتقال عین نکاح کے وقت ہوا تھا۔ اچانک انتقال کی وجہ سے اس ہڑبڑی میں کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ شازیہ کے گھر والے بری طرح ٹوٹ گئے اور ان کے گھر میں خوشی آنے سے پہلے ہی ماتم بچھ گیا۔ لیکن چونکہ
निकाह का सब इंतजाम हो चुका था और चौधरी भी इस बात पर बजिद था, इसलिए जल्दी से उसने निकाह पढ़वा लिया। निकाह पढ़वाते वक्त शाजिया से सिर्फ जल्दी से निकाहनामे पर साइन लिए गए। शाजिया ने भी निकाहनामे पर कुछ भी नहीं लिखा था। वो रोते हुए जल्दी से साइन करके वहां से चली गई। चौधरी ने शाजिया के बाप की तदफीन के फौरन बाद ही उन लोगों से कहा वो 1 हफ्ते बाद रुखसती करवा कर शाजिया को ले जाएगा। 1 हफ्ते बाद जब चौधरी शाजिया को रुखसती करवा कर अपने गांव हवेली में ले जा रहा था, तब शाजिया अपने बाप की मौत की वजह से रंजीदा भी थी, मगर शाजिया पहले तो बहुत सहमी हुई थी। यूं तो उसने चौधरी को पहले से ही देख रखा था, लेकिन उसने भी इतने बचपन से गुर्बत देख रखी थी कि उसे अब चौधरी की उम्र और उसके पहले से शादीशुदा होने से कोई मसला नहीं था। सबसे बढ़कर उसकी बीवी फौत हो चुकी थी और अब वो उस घर में चौधरानी बनकर जा रही थी। हवेली में दाखिल होते ही शाजिया के दिल में अजीब सी खुशी हुई और वहाँ पर उसके इस्तकबाल के लिए सिर्फ वहाँ के मुलाजमीन ही थे, क्योंकि चौधरी का कोई रिश्तेदार नहीं था। हैरत अंगेज तौर पर उसका सिर्फ एक मामू और ममानी ही थे, वो भी मुल्क से बाहर रहते थे। उसके अलावा उसका कोई रिश्तेदार नहीं था। जब चौधरी कमरे में आया तो उसके साथ उसका बेटा भी था। उसकी उम्र तब 12 साल होगी और शाजिया की उम्र तब 18 साल थी, यानी उससे वो सिर्फ 6 साल ही छोटा था। चौधरी शाजिया का घूंघट उठाते ही अपने बेटे से कहने लगा, देख मैं तेरे लिए कितनी खूबसूरत माँ ब्याह कर लाया हूँ, प्यारी है ना। चौधरी का बेटा बहुत ही मासूम था। शाजिया को देखकर वो मुस्कुराने लगा और उससे कहने लगा, मैं आपको आज से आप ही बोलूंगा। शाजिया ये लफ्ज सुनते ही मुस्कुराने लगी। इतने में एक बुरी सी मुलाजमा कमरे में दाखिल हुई और चौधरी उससे कहने लगा, आओ आओ नजमा आओ, ये देखो मैं तुम्हारी चुदरानी लेकर आया हूँ, अब ये तुम पर हुक्म चलाएगी। हाँ शाजिया, एक बात का ख्याल रखना, तुम किसी भी नौकरानी से किसी किस्म की कोई बात ना करना। मेरा मतलब है कि जाती कोई बात घर से मुतल्लक, हाँ काम काज चाहे भले सारा दिन उनसे करवाती रहना। और ये खास मुलाजमा है, ये मेरी माँ के ज़माने की मुलाजमा है, इसका बस खास ख्याल रखना और इससे तुम हर बात कर सकती हो। ये कहते हुए उसने फिर उस मुलाजमा की तरफ देखा और उसे अजीब ही नजरों से उसने इशारा किया। वो चौधरी का इशारा समझते ही शाजिया से सलाम करते हुए वहां से चली गई। शाजिया को वो हरकत बहुत अजीब लगी। खैर तब उसने इस बात को इतना नोट नहीं किया और वैसे भी वो इतनी बड़ी बात नहीं थी। शाजिया ने समझा कि शायद चौधरी का अपनी नौकरानियों पर बहुत रौब और दबदबा होगा, इसीलिए तो वो उसे चौधरानी समझकर अब उसमें भी वो रौब और दबदबा बढ़ाना चाहता है, ताकि उसके रौब और दबदबे में आकर सब नौकरानियां दबकर रहें। शाजिया तब खुशी से फूले नहीं समा रही थी। उसे तो यूं लग रहा था जैसे दुनिया की सारी खुशियां उसके दामन में भर आई हों। फिर वो मुलाजमा चौधरी के बेटे को भी जाते वक्त साथ ले गई और चौधरी उठकर अलमारी में से बहुत सारे जेवरात के डिब्बे शाजिया के सामने लाकर रखते हुए कहने लगा, ये मेरी पहली बीवी के जेवर हैं, ये आज से सब तुम्हारे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम हर वक्त सच संवर कर रहो और ये मत समझना कि मैं सिर्फ तुम्हें अपनी बीवी के जेवरात पर ही टरका दूंगा। असल में ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं तुम्हारे लिए खास तौर पर जेवरात बनवाता। तुम जिस कदर खूबसूरत हो, तुम्हारे लिए तो सोने के नहीं बल्कि हीरे के जेवरात होने चाहिए थे। चौधरी ने इस तरह शाजिया को शीशे में उतारा कि शाजिया उस शीशे में सिर्फ चौधरी की अच्छाइयां ही देखने लगी और अपनी खूबसूरती और अमीर होने पर नाज करने लगी। कुछ ही दिनों में वो उस माहौल में रच बस गई। उसे यूं महसूस हो रहा था कि वो सिर्फ उस हवेली के लिए ही बनी थी। चौधरी के साथ निकाह को 5 महीने गुजर गए। शाजिया की माँ और छोटा भाई उससे मिलने की गरज से आए, जबकि चौधरी को उन लोगों का हवेली में आना अच्छा न लगा। उसने उसकी वालिदा को देखते ही कहा, ये क्या बात हुई? मैंने तुमसे शर्त रखी थी निकाह करने से पहले और तुम तो अभी से वो शर्त पूरी नहीं कर रहे। चौधरी की ये बात सुनते ही शाजिया हैरानगी से चौधरी और अपनी माँ की तरफ देखने लगी। उसकी माँ ने चौधरी के सवाल खत्म होने से पहले ही जवाब देते हुए कहा, हम सिर्फ आज ही मिलने आए हैं और इसके बाद शायद मिलने नहीं आएंगे।
ये तो इसका छोटा भाई जिद कर रहा था, इसलिए मैं आज इसको इस वादे के साथ मिलवाने के लिए लाई हूँ कि दोबारा हम नहीं आएंगे। शाजिया को चौधरी और उसकी माँ की बात समझ ही नहीं आ रही थी कि वो ऐसा क्यों कह रही है। फिर जब चौधरी वहाँ से चला गया तो शाजिया ने अपनी माँ की तरफ सवालिया नजरों से देखा। तब उसकी माँ ने बताया, निकाह के वक्त चौधरी ने शर्त रखी थी, ना ही शाजिया कभी दोबारा आपके पास आएगी और आप लोग भी शाजिया से मिलने के लिए साल में 1-2 बार ही आएंगे, वो भी नहायत मजबूरी में, वरना शाजिया से मुलाकात सिर्फ फोन पर ही कर पाओगे। यानी उन लोगों का हवेली में आना मना था। ये कहते हुए उसकी माँ ने कहा, क्योंकि वो निकाह का वक्त था और तुम तो जानती हो कि हमें पैसे की जरूरत थी और एक चौधरी ही था जो हमारे हालात को बदल सकता था, और अब तो तुम्हारे वालिद भी नहीं रहे। बेटी, हमें गलत मत समझना, लेकिन हम तुम्हारे घर वाले हैं। अगर हमें तुमको लेकर अगर कोई सुख मिल ही रहा है तो ये हमारा पूरा हक है कि हम उसका फायदा उठा सकें। ये कहते ही वो शाजिया को लाजवाब करते हुए थोड़ी देर वहाँ रुके और दोनों ही वहाँ से चले गए। शाजिया चौधरी की और अपनी माँ की शर्त को जानकर थोड़ी देर के लिए उदास हुई, मगर उस वक्त उसकी आंखों पर चौधरी की दौलत और उसकी मोहब्बत की पट्टी बन चुकी थी। धीरे धीरे यूं ही वक्त गुजरता रहा और शाजिया का सुतेला बेटा मोहम्मद रजा अपनी माँ यानी शाजिया के साथ बहुत खुश रहने लगा। शाजिया भी उसका हर तरह से ख्याल रखती। यूं शाजिया और मोहम्मद रजा को देखकर चौधरी की आंखों को भी ठंडक मिलती और उसके दिल को सुकून मिलता। वो दिल ही दिल में खुश होता कि मैंने कितना अच्छा फैसला किया है, मेरा घर फिर से बस गया और मेरे बच्चे को माँ मिल गई। लेकिन चौधरी एक गुनाह मुसलसल किए जा रहा था। वो ऐसा गुनाह था जिसकी कोई माफी नहीं थी। उस वक्त चौधरी के सर पर शाजिया का हुस्न और जवानी सवार थी। उसे वो गुनाह नहीं लग रहा था। शाजिया की जिंदगी ख्वाबों की सी गुजरने लगी और उस हसीन जिंदगी में उसकी खुशी में एक और इजाफा हुआ जब उसे मालूम पड़ा कि वो माँ बनने वाली है। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था, जबकि चौधरी इस बात को सुनते ही थोड़ा डर गया। शाजिया सोच रही थी कि वो जब अपने शोहर को बताएगी तो वो खुशी से झूम उठेगा। उसे अब शाजिया भी वारस देगी। लेकिन शाजिया ये देखकर बहुत ही हैरान हुई कि चौधरी उसकी दी हुई खुशी पर इतना खुश नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर पसीना आ रहा था। सुतेले बेटे मोहम्मद रजा को जब इस बात की खबर हुई तो वो बहुत ही खुश हुआ कि अब उसे कोई बहन या भाई मिल जाएगा। यूं ही दिन गुजरते रहे और शाजिया की गोद भराई का वक्त भी आ गया। जिस महीने शाजिया की गोद भराई होनी थी उसी महीने उसके शोहर के मामू और मुमानी अचानक से पाकिस्तान आए और वो सीधा ही शाजिया के शोहर की हवेली में आ गए। उनके आने की इत्तला किसी को भी नहीं थी, यानी उन्होंने अपने भांजे को भी अपने आने की इत्तला नहीं दी थी। वो सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने आकर घर का मंजर देखा तो वो सरप्राइज शाजिया की सारी खुशियों पर पानी फेर गया और शाजिया को आसमान से लाकर जमीन पर फेंक दिया। शाजिया की मुमानी ने जब शाजिया को देखा तो एक पल के लिए वो बहुत हैरान हुई। जब शाजिया ने उनको यूं हैरान होते देखा तो वो भी परेशान होने लगी कि वो इस कदर मुझे देखकर क्यों हैरान हो रही हैं। क्या चौधरी ने अपने मामू और मुमानी को अपनी दूसरी शादी के बारे में नहीं बताया था? अभी शाजिया अपने दिल में यही सोच रही थी कि उसके शोहर की मुमानी यानी चौधरी की मुमानी उसे कहने लगी, तनवीर, ये हम क्या सुन रहे हैं? तुमने हमसे झूठ बोला। तुम खुलकर बात करोगे या नहीं? असल में बात क्या है? इतने में चौधरी बोला, आप थोड़ा सा सांस तो लें, मैं आपको सब बता दूंगा, हम बाद में बात करेंगे। शायद चौधरी शाजिया के सामने कोई बात नहीं करना चाहता था, जबकि उसके मामू बहुत ही गुस्से में थे और उससे कोई बात नहीं कर रहे थे। इतने में मोहम्मद रजा दौड़ता हुआ आया और चौधरी के मामू और मुमानी को नाना नानी कहकर पुकारते हुए उनसे मिलने लगा। शाजिया को इस बात की समझ नहीं आई कि मोहम्मद रजा उन लोगों को नाना और नानी क्यों कह रहा है, जबकि वो तो चौधरी के मामू और मुमानी हैं। इस लिहाज से तो वो उन लोगों को दादा और दादी कहेगा। शाजिया जब से चौधरी के मामू और मुमानी से मिली थी तब से उलझनों में ही पड़ती जा रही थी।
जो जो वो बोल रहे थे उसका जहन बहुत ही उलझ रहा था। फिर चौधरी ने कमरे में ले जाकर अपने मामू और मुमानी से जानने क्या कहा। वो गुस्से में कमरे में से बाहर निकले और शाजिया का हाथ पकड़ते हुए चौधरी की मुमानी बोली, तुम अभी हमारे साथ यहाँ से चलो और याद रखना इस हवेली में तुम दोबारा कदम नहीं रखोगी। शाजिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इससे पहले कि शाजिया उनसे कुछ पूछती, उन्होंने शाजिया से कहा, तुम नहीं जानती कि जाने अनजाने में तुमने कितना बड़ा गुनाह कर दिया है और चौधरी तुमसे वो गुनाह करवाता रहा। यूं चौधरी को बुरा भला कहकर शाजिया और मोहम्मद रजा को वो अपने साथ शहर वाले घर में ले गए और उसके बाद शाजिया को उन्होंने कुछ ऐसा बताया जिसके बाद शाजिया ने कभी भी हवेली का रुख नहीं किया। शाजिया को इस बात का भी इल्म हो गया कि वो चौधरी के मामू मुमानी नहीं बल्कि चौधरी की बीवी के मामू और मुमानी थे और वो सारी जायदाद चौधरी की नहीं उसकी बीवी की भी थी। फिर बच्चे की वलादत होने पर मोहम्मद रजा की नानी ने सारी जायदाद मोहम्मद रजा और शाजिया के नाम कर दी। यूं तो चौधरी की अपनी भी जायदाद थी लेकिन उसकी पहली बीवी की जायदाद उससे कहीं ज्यादा थी। मोहम्मद रजा की नानी ने अपनी तरफ से हर तरह की कोशिश की कि वो शाजिया को और उसके बेटे दानियाल और मोहम्मद रजा को हर किस्म की सहूलत और आसाइश दे सके। फिर उन्होंने उन लोगों को शहर वाले घर में मुस्तकिल तौर पर रहने के लिए कहा। कुछ अरसे बाद वो मुल्क से बाहर चली गई। रजा की नानी जब वहां से चली गई तो चौधरी एक बार शहर वाले घर में आया और जबरदस्ती शाजिया से बात करने की कोशिश करने लगा क्योंकि घर के तमाम मुलाजमीन को सख्ती से मना किया गया था कि चौधरी को कभी किसी सूरत घर में दाखिल नहीं किया जाएगा। लेकिन चौधरी वहां पर काफी शोर और वावेला मचाने लगा। मौके की नजाकत को समझते हुए शाजिया ने चौधरी से आखिरी बार बात करने की गरज से उसे अंदर बुलवाया और उससे पूछने लगी कि वो अब क्यों आया है। चौधरी ने शाजिया को देखते ही उससे माफी मांगना चाही और उससे कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं तब बहक चुका था, मैं सब ठीक कर दूंगा। तब शाजिया ने चौधरी से कहा, अब ठीक करने को कुछ भी बाकी नहीं रहा और मैं तो तुम पर हैरान हूँ कि तुम इतना बड़ा गुनाह करके मेरे सामने और अपने बेटे के सामने कैसे आ सकते हो। तुम जानते हो जो तुम गुनाह कर बैठे हो उसका ना ही कोई कुफारा है और ना ही माफी। आज के बाद तुम हमें कभी भी अपना चेहरा मत दिखाना। ये कहकर शाजिया ने चौकीदार को बुलवाया और चौधरी को वहां से धक्के मरवाकर घर से निकलवा दिया। उसके बाद चौधरी तो नहीं आई तो चौधरी के मरने की खबर आई। चौधरी ने उस वाक़े के एक हफ्ते बाद ही खुदकुशी कर ली और यूं चौधरी का इख्तिताम हो गया। लेकिन शाजिया की जिंदगी में वो जो कांटे बो चुका था वो अब शाजिया को सारी उम्र ही काटने थे। शाजिया रजा से अब माँ जैसी मोहब्बत नहीं कर पाती थी। उसके जहन में बार बार चौधरी का गुनाह आ जाता था। यूं ही वक्त गुजरता रहा और देखते ही देखते शाजिया का बेटा दानियाल और रजा बड़े हो गए। यूं तो शाजिया भी उम्र में रजा से सिर्फ 6 साल ही बड़ी थी, इसलिए जब रजा जवान हुआ तो शाजिया उसकी माँ नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन ही लगती। रजा शाजिया से बहुत ही मुतासिर था। वो अक्सर उसे कहता, अगर आप मेरी माँ ना होती तो मैं आपसे ही शादी करता। जबकि शाजिया ये बात सुनते ही घबरा जाती और वहां से चली जाती। फिर एक रोज रजा जब यूनिवर्सिटी से घर लौटा तो वो शाजिया से आकर कहने लगा, मैं चाहता हूँ कि आप जाकर मेरा रिश्ता लेकर आएं। शाजिया रजा के मुंह से उसके रिश्ते की बात सुनकर उसकी आंखों में नमी आ गई और वो अपनी नमी छुपाते हुए उसे कहने लगी, अच्छा ठीक है, जब तुम कहोगे मैं रिश्ता लेकर चली जाऊंगी। जबकि रजा शाजिया के इस रवैये पर बहुत हैरान था क्योंकि शाजिया ने ना ही लड़की का नाम पूछा था और ना ही हसब नसब। रजा यूं तो शाजिया से अक्सर अपने बाप से अलैदगी की वजह पूछता रहता था, लेकिन शाजिया हमेशा उससे गुस्से में आकर बात को टाल देती थी। लेकिन अब रजा बड़ा हो चुका था, उसके दिल में मजीद शुकूक व शुबहात बढ़ने लगे और फिर धीरे धीरे शाजिया का रवैया भी उसके साथ बदल रहा था। यूं तो शाजिया उसका हर तरह से ख्याल रखती थी मगर अब वो माँ जैसी मोहब्बत नहीं कर पा रही थी। फिर एक रोज शाजिया जब रजा का रिश्ता लेकर उसकी पसंद की लड़की के घर गई तो वहाँ पर उस लड़की के घर वालों ने शाजिया को देखते ही कहने लगे, वैसे बुरा मत मानिएगा पर लगता नहीं कि आप इसकी वालदा हैं, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि शाजिया रजा की सौतेली माँ है।
फिर जब शाजिया ने उनसे अपने रिश्ते के बारे में बताया तो वो बुरा सा मुंह बनाने लगे। शाजिया के साथ रजा भी गया था। शाजिया को यूं परेशान देखकर रजा को उन लोगों की बातें पसंद नहीं आई और फिर जब वो घर आए तो शाजिया जल्दी से अपने कमरे में चली गई। रजा भी समझ चुका था कि शाजिया का बुरी तरह से दिल टूटा है, इसलिए रजा भी शाजिया के पीछे चल दिया, जबकि शाजिया को ये मालूम नहीं था कि रजा उसके पीछे ही कमरे में आया है। शाजिया कमरे में दाखिल होते ही अपना पर्स बेड पर फेंकते हुए ज़ारों की तरह रोने लगी और खुद से कहने लगी, मैं आखिर कब तक ये राज छुपाती रहूंगी? मैं करूं भी तो क्या करूं? मेरी जिंदगी की सुलझन में फंस गई। मैं किस रिश्ते को किस नाम से पुकारूं? शाजिया को यूं रोता बिलखता देखकर रजा का दिल भर आया और वो जल्दी से आगे बढ़कर शाजिया को थामने लगा। शाजिया ने जब उसके हाथों की गिरफ्त अपने जिस्म पर महसूस की तो शाजिया का जिस्म कांप उठा और उसने एक पल के लिए खुद को संभालते हुए रजा को पीछे की तरफ धक्का दे दिया। रजा शाजिया के इस रद्द अमल से मजीद हैरान हो गया और उससे कहने लगा, आखिर क्या बात है? आप मुझे सच क्यों नहीं बताती? आज शाजिया का भी बहुत दिल भर चुका था। वो कब तक इस राज को छुपा सकती थी? इसलिए शाजिया उससे कहने लगी, मैं तुम्हें जो बात बताऊंगी उससे पहले बस तुम इतना जरूर जान लो, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। हाँ, कसूर है तो सिर्फ ये था कि मैंने अमीर होने का ख्वाब देखा और बस। फिर शाजिया ने उसे अपनी अलमारी में से एक कागज लाकर दिखाया। वो कागज देखते ही रजा के पैरों तले जमीन निकल गई और वो वहीं पर साकत हो गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो चुका है। उस पर जैसे आसमान टूट पड़ा था। कमरे में इस कदर खामोशी हो गई कि वो खामोशी कानों को चुभने लगी और उस खामोशी का तसलसल तोड़ते हुए शाजिया अपनी दर्द भरी आवाज में रजा से कहने लगी, अब तुम अच्छी तरह जान गए हो कि मेरे इस दुख और दर्द के पीछे की वजह क्या है। हाँ, मैं तुम्हें इतना जरूर बता देती हूँ कि तुम्हारे बाप ने हमें धोखे में रखकर मेरा और तुम्हारा निकाह कानूनी तौर पर करवाया, जबकि इस बात का मुझे नहीं पता था। उसने हम पर जाहिर यही किया था कि वो अपना रिश्ता मेरे लिए भेज रहा है और मेरे वालिद ने भी यही सोचकर मेरा निकाह करना चाहा। निकाह वाले रोज मेरे बाप को जब खबर हुई तो मेरा बाप सदमा बर्दाश्त न कर सका और वो इस दुनिया से चल बसा। इस जालिम चौधरी ने तब भी हम पर रहम नहीं खाया और इसने कागजी तौर पर मेरा और तुम्हारा निकाह करवा दिया, क्योंकि तुम्हारे नाना और नानी की ये शर्त रखी गई थी कि वो तुम्हारी माँ को मिलने वाली जायदाद तभी उसको सौंपेंगे जब वो अपने बेटे यानी तुम्हारी शादी करवा देंगे। इसलिए उसने तुम्हारी शादी करवा दी। वो निकाहनामा तुम्हारे मामू और मुमानी को उसने दिखाया और यूं उसने जायदाद ले ली। मेरा बाप चूंकि इस दुनिया में नहीं था और वही बस इस राज को जानता था, इसलिए चौधरी मुझे देखकर बेईमान हो गया और उसने हम सब पर यही जाहिर किया कि वो मेरा शोहर है। मैंने अपना निकाहनामा नहीं देखा था और तब मैं भी दौलत के जाल में इस कदर फंस चुकी थी कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये सब कुछ उस हवेली में मौजूद बूढ़ी मुलाजमा सब जानती थी, इसीलिए तो उसने मुझे शादी वाली रात ही सिर्फ उससे बात करने के लिए कहा था। बाकी तमाम मुलाजमाओं से उसने बात करने से मना किया। चौधरी की जब मुझ पर हकीकत खुली तब बहुत देर हो चुकी थी और तब कुछ भी नहीं हो सकता था। मैं अपने बच्चे को किस नाम से पुकारती, किस रिश्ते से पुकारती? अब तुम ही बताओ। दानियाल मेरा बेटा है और तुम्हारा वो भाई है, मगर अगर निकाह देखा जाए तो वो तुम्हारा सुतेला बेटा है, जबकि चौधरी से मेरा रिश्ता होने के नाते तुम मेरे सुतेले बेटे थे, जबकि निकाह में तो तुम मेरे शोहर थे। ये कहकर शाजिया फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए कहने लगी, मेरी 4 दिन की खुशी थी और फिर सारी उम्र का रोग लग गया। बताओ अब मैं क्या करूं? दुनिया के सामने किस रिश्ते से पहचानी जाऊं, जबकि मेरा असल में क्या रिश्ता है? मैं चाहती तो यही थी कि मेरे दफन होने के साथ ही ये राज, ये कागज भी दफन हो जाए, मगर अब ये राज छुपाया नहीं जा रहा। आखिर मैं भी इंसान हूँ और मैं भी दिल रखती हूँ। फिर शाजिया ने अपने आप को मजबूत करते हुए रजा की तरफ देखा, जबकि रजा अपनी नजर मुसलसल जमीन पर रखे हुए था, खुद को जैसे जमीन में धंसता हुआ महसूस कर रहा था। शाजिया ने रजा से कहा, तुम मुझसे एक वादा करो, चूंकि हम इस शहर में रहते हैं, हमें कोई नहीं जानता और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी तबाह हो और दानियाल की भी। इस वजह से तुम मुझसे वादा करो।
रजा शाजिया की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगा। वो मुसलसल खामोशी से सारी बातें सुन रहा था। शाजिया ने रजा से वादा लिया कि वो इस राज को हमेशा राज ही रखेगा और किसी से कभी उसके और अपने रिश्ते के बारे में जिक्र नहीं करेगा और जैसे जिंदगी गुजर रही थी वैसे ही गुजारेगा। हाँ, वो अपनी खुशी से दूसरी शादी कर सकता है। रजा वो कागज लिए कमरे में से बाहर निकल आया और अपनी गाड़ी में बैठकर तेज रफ्तारी से शहर से बाहर निकला और सुनसान जगह पर दरिया के करीब अपनी गाड़ी को रोकते हुए गाड़ी में से दीवानों की तरह निकला और कागज को हवा में उड़ाते हुए दरिया की तरफ फेंका और चिल्ला चिल्ला कर खुद से कहने लगा, जिंदगी इतनी भी तलख हो सकती है, मैंने कभी सोचा ना था। वो फूट फूट कर रो रहा था, जबकि वो सुनसान जगह पर कोई भी उसको खामोश करवाने वाला नहीं था। आपकी कीमती वक़्त का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।